Hello everyone and welcome to AJ classes. Today after a long time I've taken a little bit of amount of time to make a very much interesting and very much learning video for you. So this video is basically about balancing, which we always do by the method of hit and trial method, or some of the methods are left hand side. We check whatever elements are given in the reactant side and then we try to match it with the reactants, means the product side also. Okay, so a little bit of nervous after a long time, so काफ़ी गैप हो गया तो खैर. सो आज के जो बेसिकली वीडियो है वो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो आपको बैक ऑफ द स्क्रीन में दिखाई देगा थोड़ा देर बाद. एक छोटा सा बैलेंसिंग है, ठीक है. सो हम लोग किस तरह से हार्ड वाला बैलेंसिंग को कर सकेंगे, तो एक बहुत ही प्यारा सा मेथड है, गौर से सुनिएगा. आई होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर 6 to 10 सभी के लिए. 10 वाले लोग के लिए जब हम लोग व्हेन वी फाइंड इन द मोल कंसेप्ट चैप्टर, हम लोग जब नंबर ऑफ़ मोल्स वगैरह निकालते तो उसमें एक बार बैलेंस करना पड़ता है. हालांकि बहुत इजी होता है लेकिन समटाइम्स यू गेट स्टक एंड यू हैव टू ओवरकम द टाइम. The amount of time you are spending on just balancing, that also depends. Okay, so we have to reduce the time because the time limit has been given as 1 hour or 1.5 hour, and I can guess that in chemistry it will be 1 hour. So basically you have to do all the sums and do all the problems very fast. So for 10 it will be a very much exclusive video for you, and for the rest of the students this will be a learning for you. You can do the balancing in this method also. And one thing I guarantee you, one thing, that this method, by doing this method, you will never do wrong. That much हम दे देते guarantee. Trial and error method, sometimes you hit it the correct answer, but sometimes it takes a lot of time. So this one is a time saving but little bit calculative. Okay, so देखिए वीडियो शुरू करते हैं. एंड अगर आपको पसंद आए, यू नो द यूजुअल लाइंस, हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो वीडियो शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन अ इक्वेशन फॉर यू एंड दैट्स यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज HSiCl3, ठीक है, reacts with water to give H10 Si10 O15 and HCl. I know this is a very hard type, but मेरा जो फार्मूला है या फिर मेरा जो ट्रिक है वो हार्ड वालों के लिए ज़्यादा ही अच्छी बात है, मतलब टाइम सेविंग है, टाइम सेवर है एक. और इजी जो होता है ना, जो क्वेश्चंस वेरी इजीली हो जाते हैं जैसे H2+O2, वो तो आप ऐसे भी हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर सकते हो. हमने बोलेंगे कि मेरा मेथड इज़ द बेस्ट मेथड. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप रहेगा, सबके सामने में हम लोग A, B, इसके सामने एक C लिख देंगे एंड इसके सामने एक D लिख देंगे, ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली दिस, वी हैव टू राइट A, B and C and D, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सी दैट हाइड्रोजन इज गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हाइड्रोजन हम लोग उसके बगल वाले एटम्स को देखेंगे कितना दिया है. यहाँ 1 है. इफ़ नथिंग इज गिवन देन 1 इज गिवन, तो 1 into A it will remain A. Okay, here it is 2 hydrogen and it will be getting multiplied with B, तो A plus 2B. जब ये वाला साइन आएगा बीच में तो हम लोग इक्वल टू यूज़ करेंगे. What is on the right hand side? We have 10C because this 10 is getting multiplied with the C, and there is only one hydrogen which will be multiplied with D. I know this one is a long, but you will see in the end that it will be very much easier and faster. Okay, now the next one is silicon given. तो silicon को ऐसे बक्सा बना दो. यहाँ सामने में silicon का it is given 1, so it will be multiplied with A, it will give A, which is equal to, because there is no silicon on the left hand side, only here it was given and one place यहाँ दिया हुआ है. यहाँ पर आप देखिएगा 10 के साथ into में, तो 10C you can write simply. तो हमारा ये सिलिकॉन का पोर्शन हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू क्लोरीन, Cl. क्लोरीन बचा है और ऑक्सीजन बचा है. अगर सही से देखिएगा तो एक ऑक्सीजन बचा है और क्लोरीन बचा है. तो क्लोरीन का देखिए क्या होगा,
Here it is appearing for the first time 3. It will be multiplied with A. 3A is equal to, here 1 means D. 1 will be getting multiplied with D. Now we have get hydrogen, silicon and chlorine. Now moving on to the oxygen one. There it is first time appearing, so it will be B is equal to, यहाँ ऑक्सीजन आया है 15 इंटू सी 15C प्लस, और कभी आया है क्या? नहीं, और आया नहीं है, छोड़ो, सॉरी, हमको लगा वहाँ पर HCl नहीं है, H2O है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, लिसन वेरी केयरफुली, दिस वन इज एन इनिशियल स्टेप एंड दिस इज द मोस्ट important in my process. And the next one you will do is you will check that what is happening most of the time, मतलब किसके साथ रिलेशन बहुत बार बना है, कौन सा ऐसा वेरिएबल है. तो C देखिए आपका 3 इक्वेशन में आ रहा है, तो हम लोग सिंपली लेट ले लेंगे C इज इक्वल टू 1. इफ़ वी टेक C इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पर हमारा A क्या हो जाएगा, अगर C को 1 लेते हैं तो A विल बी 10. वी हैव गॉट A इज इक्वल टू 10. Now when A is equal to 10, तो 3 into 10 this will be D. तो D कितना बन जाएगा हमारा 30. I hope you are understanding. This is simply maths. We are just substituting the values. Whatever we are calculating, we are just substituting it with the values. Okay. Now here we have got 30. Here we can get B is equal to, if C is 1, 15 into 1 it will get 15. तो हम लोगों को सबका वैल्यू मिल गया C, A, B, D. अब सबको हम लोग प्लेस कर देंगे यहाँ पर जिस तरह से यहाँ गिवन है. तो नाउ आई एम यूजिंग अनदर इंक सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो द फर्स्ट वन विल बी 10H. अच्छा, ये अच्छा किया जा सकता है नेक्स्ट चीज़ कि रिएक्टेंट जो है उसका कलर अलग रहे ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके आप लोग. HSiCl3 प्लस B का वैल्यू देखिए, B वी आर गेटिंग 15, सो इट विल बी 15 एंड it will be written as H2O, and this gives C which we have taken as 1, so it will remain as it is H10 Si10 and O15 plus the last one is saying D. We have found out the value D was 30 यहाँ आ गया, और HCl जो कि प्रोडक्ट का बचा हुआ था उसको लिख लीजिए. नाउ आप खुद से मैच कर लीजिए और आंसर देखिए एकदम परफेक्टली आ गया होगा. ट्राई टू मैच इट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट. वी विल डू अनदर वन, अ सिंपलर वन दैन दिस, सो दैट you have totally understand how this process works. This one was a little bit bigger. We didn't want to go into this because यहाँ पर काफ़ी सारा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन ये तीनों और चौथा रिलेशन की वजह से we have simply फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D, एंड जहाँ जहाँ A लिया था वैसे वैसे पुट कर दिया. देखिए अब हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि वेदर वी हैव फाउंड आउट करेक्टली और नॉट. ओके, तो चेकिंग मेथड कैसे करेंगे. यहाँ देखिए हाइड्रोजन 10 एंड 15 टू ज़ 30, 40 हाइड्रोजन इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है. राइट हैंड साइड में चेक करिए कितना हो रहा है, 10 एंड 30, 40 दोनों बैलेंस हो गया. Si 10, Si is 10, Cl 3 and 10 gets multiplied 30, here 30 Cl, 15 O. I hope you have clearly understand this one. Now we will do a little bit easier one so that there is no problems and you will never get stuck in any of this balancing ever in the world. Okay, this is a little bit challenging word. अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस बात की गारंटी मैं लेना चाहूँगा कि आप कभी भी बैलेंसिंग में रॉन्ग नहीं करिएगा. अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार आप समझ गए ना, कभी मिस्टेक नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं जब तक आप वेट करो. सो आई हैव रिटन अनदर क्वेश्चन फॉर यू सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मेथड बिहाइंड दिस ट्रिक. ओके, the first step is to simply write A, B, C and D. First step is this, and then we will do the
differentiation of each and every element whatever it is given. First of all, we have taken carbon. Starting from the left hand side of the reactant, it is given that there is two atoms of carbon here, so it will be multiplied. ये multiply हो जाएगा simple steps. Starting हिंदी से बोलते हैं 2a, ठीक है, 2a हो गया, यहाँ पर कार्बन था, कार्बन फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर कितना है, nothing is given there, so 1 will be taken, so this will be equal to 1 into C, which will be C as it is. Don't get confused with this C. This one is a smaller C and this one is a bigger, denoting carbon. Okay, now the next one is hydrogen. तो इसको बक्सा बना देते हैं. हाइड्रोजन यहाँ देखिए 4 है, तो 4 will be multiplied with A. 4A is equal to, यहाँ देखिए 2 है, H के बगल में जो लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है हमको D से, जो कि यहाँ हम लोगों ने लिखा है, तो 2D. ओके, 2 हो गया. तीसरा एंड द लास्ट वन, ऑक्सीजन इज गिवन. सो ऑक्सीजन हेयर इट इज़ गिवन एज 2B विच इज़ इक्वल टू, गौर से देखिएगा, 2C. ओके, एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन हेयर ऑल्सो. H2O में H इज़ 2 टाइम्स बट ऑक्सीजन इज़ 1 टाइम. तो हम लोग यहाँ बीच में जो साइन था प्लस D के साथ लिख देंगे, बस हो गया हमारा. ऑलमोस्ट first step, initial steps we have done it. Now the next step is to simply take any one. In the previous one we have done that C, लेकिन यहाँ देखिए A के साथ ज़्यादा रिलेशन बन रहा है. अगर दोनों तरफ से A निकाल लेते हैं तो C एंड D का वैल्यू निकल जाएगा, फिर हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं. तो इस बार हम लोग A को लेट करते हैं. लेट A इज इक्वल टू 1. जैसे ही A को 1 लेते हैं तो C का वैल्यू हमको मिल जाता है 2. देखिए, ठीक है, A 1 हो गया है, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, D विल बी इक्वल टू 4/2 विच विल बी 2. तो D भी हमको मिल गया 2. ठीक है, आई होप आपको समझ में आता होगा. D का वैल्यू हमको मिल गया है 2. नाउ A C D मिल गया. अब B निकालना है, तो 2B इज इक्वल टू, C हमारा 2 था यहाँ, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस D भी 2 था 6. तो हमारे B इज इक्वल टू 4 + 2 6, 6/2 3. मतलब मुझे कि भी खैबी की तरह करने का दिल कर रहा है. खैबी मीन्स एक तो जो बंदा है जो ऐसे करता है. देखिए इतनी आसानी से बस जहाँ जहाँ A B C D यूज़ किए थे उसके वैल्यूज़ को पुट कर दो, कोई रॉन्ग बोल नहीं सकता है, पूरा का पूरा सही है. तो चलिए हम लोग करते हैं. देखिए हमारा A का वैल्यू यहाँ पर था, तो ये 1 एज इट इज़ रह जाएगा. तो C2H4 it will remain as it is. And the next one B, we have found out B was 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे. 3, अच्छा ऑक्सीजन को अलग कलर से यूज़ करो. 3O2 now gives C we have got 2, तो 2 क्या होगा, CO2 plus D was coming 2, so 2 waters. चेक करिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई रॉन्ग कर भी सकता है ऐसा. मतलब इतने आसान तरीक़े से आप लोगों को बताया हूँ कि अगर आप अच्छे से समझ लो तो बैलेंस इक्वेशन ओहो बहुत आसान है. बस आप दीजिए ना बैलेंस इक्वेशन, हम कर लेंगे. बट हाँ, इसमें भी पुटिंग में अगर आपका ये वाला जैसा मिस्टेक हो जाएगा तो फिर बहुत गलत आंसर आएगा. ऑक्सीजन का एक बार फिर से देख लीजिए. यहाँ 2B हुआ था, यहाँ 2C हुआ, और यहाँ पर अगर एक और बच जाता है ना तो उसको प्लस कर देते हैं, प्लस D क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कुछ नहीं 1 होगा, तो 1 × D रहा. ठीक है, अब देखिए सब जगह जो हम लोग प्लेस किया तो देखिए बैलेंस हो रहा है कि नहीं. यहाँ C2 है, यहाँ भी C2 है, H4 है, 2 2 ज़ा H4 है, O6 है, 2 2 4 और 2 6. थम्स अप. आप लोग और ट्राई करिएगा और चैनल पे बने रहिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए. थैंक यू फॉर वाचिंग AJ क्लासेस. बाय बाय, टेक केयर.